So here we will discuss one very important kind from remainder and factor theorem. Question is, use the factor theorem to factorize 2m cube plus m square minus 13m plus 6. Means a cubic is given और 3 set दिए हैं of its factors. Now we have to check कि which set is correct to be the factors of this cubic. Okay. So what we will do here is we will start by putting the values. Okay. First of all, let us check the first set. First factor is m minus 2. If m minus 2 is a factor means, see how to do. If suppose m minus 2 is a factor, we will put it equal to 0, right? So what is the value of m then? m is equal to 2. Okay. अब ये जो m की वैल्यू है, we are going to put it here everywhere so that if this expression becomes 0, मतलब m minus 2 उसका एक factor होगा. So let us check. 2 into 2 to the power 3 plus 2 to the power 2 minus 13 into 2 plus 6. So 2 8 2s are 16 plus 4 minus 26 plus 6. Okay. So it is surely 26 minus 26 equal to 0. If this remainder, let us say, means by remainder theorem it is remainder only. Okay. अगर ये remainder 0 आ जाता है, it means m minus 2 is a factor. Simple language में बोलें तो if this, by putting m equal to 2, if whole of this expression becomes 0, it means m minus 2 is its one factor. इसका मतलब ये हो गया कि अगर m minus 2 उसका एक फैक्टर है तो m plus 2 m plus 2 m plus 2. वी हैव टू चेक फर्दर कि भाई m plus 2 कहीं इसका फैक्टर तो नहीं है. मीन्स वी विल पुट m equal to minus 2. ठीक है. सो देखने से ही लग रहा है कि अगर m equal to 2 से पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाता है तो m equal to minus 2 से पूरा एक्सप्रेशन 0 नहीं बनेगा. यू कैन वेरीफाई विद इन 10 seconds दिस थिंग. ठीक है. इसका मतलब ये कोई भी ऑप्शन ट्राई करने की आपको ज़रूरत नहीं है वेयर वन फैक्टर इज़ m plus 2. ओके. क्योंकि हमने चेक कर लिया कि m plus 2 इज़ नॉट ए फैक्टर, देन नो नीड टू चेक फॉर द अदर गिवन फैक्टर्स. ये तीनों ऑप्शंस क्रॉस हो जाती हैं. तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ अटेम्प्टिंग द MCQs. ठीक है. मिनिमाइजिंग द ऑप्शंस. ये ऑप्शन कम कर दी, ये कम कर दी, ये कम कर दी. मोर ओवर तीनों में से वी हैव ऑलरेडी चेक्ड कि m minus 2 इज़ ए फैक्टर, क्योंकि जो है उसको m equal to 2 पुट करने से अवर एक्सप्रेशन इज बिकमिंग 0, मतलब उस केस में रिमाइंडर 0 हो जाता है. ओके. अगर आपको अनदर ऑप्शन यहाँ कहीं भी m minus 2 होता देन वी वुड हैव चेक्ड दिस. इसको भी चेक करने से ईजी क्या होता है, बाई पुटिंग m plus 3 इक्वल टू 0. ठीक है. सो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ वेरी बिग लॉन्ग आंसर. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड, जहाँ पे क्यूबिक दी होगी और उसके 3 आपसे फैक्टर्स पूछे जाएंगे. सो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ अटेम्प्टिंग सच क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. Now let us discuss one more important question from remainder theorem. Question says, if fx is equal to 2x square plus kx minus 6 leaves a remainder minus 3. Okay, remainder is given. Leaves a remainder minus 3 when divided by x plus 3. Then what is the value of k? 4 options are given. ठीक है. अब क्वेश्चन को समझना है कि अवर डिवाइजर इज x plus 3. जब x plus 3 के हम अपने डिविडेंड को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर इज minus 3. इट मीन्स if our fx is 2x square plus kx minus 6. Okay. So what will be the remainder if the divisor is x plus 3? Put the divisor equal to 0. x is equal to minus 3. डिवाइजर को 0 पुट करने पे जो x आता है, that value we have to put back here. देखो, in that case the remainder will be, देखो, the remainder will be f of minus 3 because x की जगह पे we have to put that value. But remainder is already given to us. Remainder is given to be minus 3. So now minus 3, remainder की जगह पे minus 3 रखा. What is f of minus 3? f of minus 3 का मतलब है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह पे हम minus 3 रख देंगे. So minus 3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू minus 3 minus 6. Right? So minus 3 equal to 9 2s are 18. Solve properly. Minus 3 के minus 6. 18 minus 6 will be 12. 12 जब उधर जाएगा माइनस का, इट विल बिकम minus 15 इज इक्वल टू minus 3 के और k विल बी इक्वल टू 5. तो k की क्या वैल्यू आ रही है? व्हेन द रिमाइंडर इज minus 3, k इज इक्वल टू 5. सो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज ए. ओके. सो ऐसा क्वेश्चन भी श्योर है व्हेन डिवाइजर इज गिवन, डिविडेंड इज गिवन एंड रिमाइंडर इज गिवन.
इस रिमाइंडर की जगह अगर फैक्टर दिया होता दैट इफ x प्लस 3 इज़ अ फैक्टर, तो हम इस रिमाइंडर की जगह क्या पुट कर लेंगे 0 एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड फ्रॉम रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम. Now the next sum I have taken up is find the remainder when fx is divided by gx. मतलब वो सिंपल रिमाइंडर निकालने के लिए बोल रहा है when both fx and gx are given to us. So question is simple but the way it will be written तो उससे लगेगा कि ये क्वेश्चन टफ है. So this is our dividend and this is our divisor, है ना. सो वी विल नॉट डिवाइड, एक्चुअली हम अप्लाई करेंगे रिमाइंडर थ्योरम. उसके लिए सिंपली क्या करना है, वट एवर इज़ द डिवाइज़र, डिवाइज़र है x माइनस रूट 3, तो आपको उसको पुट कर देना है इक्वल टू 0 और x की निकाल लेनी है वैल्यू. ये x की वैल्यू आप पुट करोगे fx में. ओके, सो fx क्या है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. इस x की जगह वी विल पुट रूट 3 एवरीवेयर. ठीक है. एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर, रूट वाला जो क्वेश्चन होगा ना, रूट वाली कैलकुलेशन श्योरली दी जाएगी इन ऑर्डर टू चेक योर कैलकुलेशंस. और कितने बच्चे उसको अच्छे से कर पाते हैं अटेम्प्ट, दैट इज़ टू बी सीन. ओके, सो रूट वाले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है, अदरवाइज इट विल बी सिंपल ओनली. तो fx में सब जगह पे हम रूट 3 पुट कर देंगे. तो पुट किया तो रूट 3 पावर 3 माइनस 3 इंटू रूट 3 पावर 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस 1. दिस यू नीड नाउ टू सॉल्व वेरी केयरफुली. रूट 3 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करो, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, 2 बार की मल्टीप्लिकेशन बन जाएगी, आंसर विल बी 3. रूट रूट विल गेट कैंसल्ड और एक बार का रूट एज इट इज़ बच जाएगा. द आंसर विल बी 3 रूट 3. ओरली कर सकते हैं. माइनस रूट 3 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, दैट नंबर ओनली, क्योंकि पावर 2 और जो रूट हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. सो फ्रॉम हियर ओनली 3 विल बी लेफ्ट. 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 2 रूट 3 एज इट इज़ एंड प्लस 1. सो अब देखो हाउ टू सॉल्व दिस. रूट 3 एंड रूट 3 इनको क्लब करके लिख लेते हैं. 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 9 प्लस 1. These are the irrational numbers, these are the rational numbers. Irrational को irrational में हमने ऐड करना है, तो treated as x only. It's like 3x plus 2x, क्योंकि रूट तो सेम है, तो it is 3x plus 2x. It will be 5x, means 5 root 3 and minus 9 plus 1 क्या बन जाएगा, minus 8. ओके, सो इरेशनल पार्ट इरेशनल में ऐड कर दो, रैशनल रैशनल को आप सॉल्व कर लो. सो ये कैलकुलेशन में जो बच्चा स्ट्रांग रहेगा ही ओनली विल गेट द करेक्ट आंसर. रिमेंबर, सो फाइनल करेक्ट ऑप्शन इज, लास्ट में हमने फिल करनी है. रिमेंबर, वी हैव टू फिल द करेक्ट ऑप्शन नंबर. सो करेक्ट ऑप्शन नंबर इज सी. लाइक दिस वी हैव टू फिल. सो 5 रूट 3 माइनस 8 इज अवर करेक्ट ऑप्शन. ये बन गया उसका रिमाइंडर. ओके, so take care of these important kind from the remainder and factor theorem. likes of this, इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे. क्वेश्चंस इजी होंगे बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर कैलकुलेशन. होप these answers are clear. Thank you very much to you all for watching and stay tuned for my next video.